सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत-बहुत ਨਿੱਘਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀਏ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ नहीं है और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। बस लोड़ है एकाग्रता दी कि आप अपनी पंजाबी नू जिस तरीके नाल सीखना चाहुंदे हो उस तरीके नाल प्यार नाल सबर नाल ते मेहनत नाल सीखो। ਅਸੀਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹ ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ 500 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ 500 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਪੈਨਸਿਲ ਸਭ ਰੈਡੀ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੁਆਇਨ योर हैंड्स एवरीवन, क्लोज योर आईज और मन चित एकाग्र करके ऐसे सिमरन करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलेंगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, सो जिवें कि ਅਸੀਂ देख पा रहे ਹਾਂ कि ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ मैं पूरी कोशिश करांगा कि पंजाबी की ये जो पहली क्लास है इसमें हिंदी बोलूं थोड़ी थोड़ी, ताकि सभी को समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, इसमें हम आज का लेसन सीखेंगे, बट लेसन कैसे सीखेंगे, इट विल टोटली बी अ न्यू प्रोसेस। जैसे हम पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी या कोई और भाषा सीखते आए हैं कि पहले उसके वर्ण, अल्फाबेट पहले वो सीखते हैं, पूरे अल्फाबेट सीखते थे और उसके बाद हमें कुछ और करना पड़ता था, कुछ और सीखते थे, मात्राएं सीखते थे, फिर शब्द बनाना सीखते थे, फिर उसके बाद सेंटेंसेस फ्रेमिंग, उसके बाद पैराग्राफ। मतलब इट वुड हैव टेकन अ लॉट टाइम कि एक सेंटेंस या एक शब्द बनाने में मुझे कम से कम पहले सारी मुहारनी तो सीखनी ही पड़ेगी, इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बट आज जिस प्रोसेस से हम सीखेंगे, वाहिगुरु जी की कृपा से आज हम पहली क्लास से ही काफी सारे शब्द बनाना सीख जाएंगे। पंजाबी कुछ ऐसे तरीके से सीख रहे हैं जिसमें राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट क्लास से हम पंजाबी के खूब सारे शब्द बनाने सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंजाबी सीखिए। तो मैं हिंदी में लिखूंगा पंजाबी, हिंदी में लिखूंगा पंजाबी। देखिए, पंजाबी सीखिए। तो अब हम देखेंगे पंजाबी कैसे सीखते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पंजाबी और हिंदी में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और अगर आप वाकिफ ही ना होंगे तब आप कहेंगे ऐसा तो होगा ही नहीं, पंजाबी और हिंदी में सिमिलैरिटीज कैसे होंगी, ये तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, है ना। बट पंजाबी और हिंदी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। पता है क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज ही देखेंगे आज, ठीक है। वो सिमिलैरिटीज देख के हमें पता चल जाएगा कि पंजाबी और हिंदी में ऐसे कौन से शब्द है जो हूबहू मिलते जुलते हैं। उससे हम शुरुआत करेंगे पंजाबी सीखने। अच्छा, आपको हमने रिक्वेस्ट करी थी कि इस चैनल पे कल मेरे को काफी सारे लोगों के फोन आए और काफी सारे लोगों के फोन भी आए और काफी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर हम क्लास नहीं अटेंड कर पाए, हम तो मिस कर गए कल की क्लास, तो कैसे अटेंड करेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि हमारे पास ये चैनल है, जो आपको कल भी बताया गया था कि हमारे पास ये चैनल है जहां पर आप रोज के लेसन्स देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस चैनल को जाके सब्सक्राइब किया ही नहीं होगा तो आपको कैसे मिलेगा रोज का लेसन। इन केस आप मिस कर जाते हैं आज का लेसन या कल का लेसन, तो इस चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बनाई है समर कैंप के नाम। उस प्लेलिस्ट पे जाकर आपको इजीली दिख जाएगा कि कल कौन सा लेसन कराया था वीर जी ने, आज क्या कराया। तो मेक श्योर कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, जी फॉर ग्रेटिट्यूड यूट्यूब। और दूसरी बात, फेसबुक का पेज आप सबने लाइक करना है। फेसबुक पेज सबने लाइक करना है। क्या पेज का नाम है? दविंदर कौर फाउंडेशन। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इसके लिए हमें बार बार कॉल आ रहा था। आपने देखा होगा कि आज हमने मीटिंग भी डिस्कनेक्ट करी, दोबारा चलाई, है ना, क्योंकि बार बार हमें कॉल्स आ रहे थे कि कैसे लॉग इन करना है। दविंदर कौर फाउंडेशन का फेसबुक पेज आपने लाइक करना है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, होमवर्क करना है आपने। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्लास में क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। एक हफ्ते में या 10 दिन में तो भाषा कोई सीखी जाएगी नहीं। हम पुरजोर कोशिश करेंगे, वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लिया है, पुरजोर कोशिश करेंगे कि आप सीख जाएं और आसान तरीके से सीखें। परंतु आप तभी सीख पाएंगे अगर आप होमवर्क रोज करेंगे। होमवर्क क्या है रोज का?
आज का होमवर्क किस किसने किया था? चलो सबसे पहले मैं बता दूं क्लास में डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर। आपने अगर मेरे पुराने समर कैंप्स अटेंड करें तो आपको पता होगा ये क्या कराएगा सबसे पहले आके क्लास। हम सबसे पहले ना मुन्नी बनना सीखते हैं क्लास में, ताकि सर को पता तो चले कि मेरे कौन कौन से बच्चे यस नो कर रहे हैं। तो बजरंगी भाईजान किस किस ने देखी है मुझे बताओ जरा, किस किस ने देखी है बजरंगी भाईजान? मैं दूसरे डिवाइस से आपको देख सकता हूँ। अच्छा, बड़े सारे लोगों ने देखी है। तो आप मेरे को बताओ उसमें मुन्नी से जब सलमान खान पूछता था कि तू क्या इंडिया की रहने वाली, तो मुन्नी क्या करती थी? कैसे करती थी? सारे करके दिखाओ, कैसे करती थी? नहीं, बोल ही नहीं सकती थी बेचारी। यहाँ पे भी हमने आप सबको म्यूट कर दिया, तो आप बोल ही नहीं सकते। अब जब सर पूछेंगे कि आपको सर का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तब आप ऐसे कहोगे। कैसे करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैसे करेंगी ये प्यारी मुन्नियां? कितनी सारी मुन्नियां बैठी हुई हैं हमारी क्लास, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कंट्रीज से। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वाहिगुरु जी हैज ब्लेस्ड अस विद लॉट ऑफ हिज ग्रेस, कि हमारे साथ इतनी सारी मुन्नियां बैठी हैं। सब मुन्नियों को मेरी आवाज आ रही है? देखो मैं किस किस को आ रही है। ओहो, बड़ी एक्टिव हैं ये तो सारी मुन्नियां। वेरी नाइस। अब प्यारी मुन्नियां, आपने क्या करना है, जब भी वीर जी कुछ पूछेंगे आपने मुन्नी बन के यस और नो आंसर करना। सबको समझ आई? बोरिंग लग रही है क्लास? अच्छा, हर बार ऐसे ही थोड़ी करना है, अगर नहीं लग रही तो ऐसे भी करना है कभी कभी। ओके, तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे सिमिलैरिटीज। ये मुन्नी हमने बनना इसलिए सिखाया कि आप सबने क्या करना है, होमवर्क। होमवर्क के लिए आज हमने पंजाबी के लेसन 1 की वीडियो डाली थी। किस किस ने देखी थी? ईमानदारी से बताएंगे, आपके ग्रुप्स में वीडियोस आई थी, किस किस ने देखी थी? मैं देखूं किस किस मुन्नी ने देखी थी। देखो आधों के हाथ तो खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि देखी ही नहीं थी, है ना? तो नहीं देखेंगे तो जनाब कैसे सीखेंगे? देखनी है ना, रोज का रोज होमवर्क करेंगे तभी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कश्मीर पहुंची थी ना मुन्नी, उसने रोज का होमवर्क किया था, यस नो बराबर कर रही थी वो सलमान खान को। रास्ता ही ना बताती तो कैसे पहुंचती? तो हम भी रोज का रोज होमवर्क करेंगे। आप प्रॉमिस करते हो कि होमवर्क करोगे रोज का रोज? वेरी गुड। एक नोटबुक, पेन, पेंसिल हैंडी हमेशा होनी चाहिए आपके पास। उससे क्या होगा, सारे नोट्स एक जगह पे आपके पास आ जाएंगे, और फिर आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी कि पुराने लेसन्स में क्या कराया था, नए लेसन्स में क्या कराया था। अब आप कहोगे इतना बड़ा भाषण दिए जा रहे हो सर, क्लास तो शुरू करो। ये भाषण इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप होमवर्क कंप्लीट करें, फेसबुक का पेज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो क्लास के बीच मुझे कॉल्स ही कॉल्स आते रहते हैं, अभी भी कॉल आ रहे हैं। व्हाट्सएप तो भर चुका होगा मेरा मैसेजेस, लिंक कहाँ है जी, हम एंटर नहीं हो पा रहे हैं, फेसबुक कैसे खोलना है? तो आपने सबने खूब मेहनत करनी है, ठीक है? होमवर्क रोज का रोज देखना है, कैंप की जो वीडियो डालूंगा रोज की रोज वो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे वो कहते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। हम करेंगे शुरू अपनी क्लास लेकर प्रभु का नाम। प्रभु का नाम हमने लिया है, 5 टाइम्स वाहिगुरु बोला है, ठीक है? तो अब प्रभु जी का नाम तो ले लिया, आइए क्लास शुरू। सिमिलैरिटीज, सबसे पहले हम देखेंगे समानताएं। सारे साथ साथ बनाते रहेंगे समानताएं। अच्छा, मेरी हिंदी ना इतनी अच्छी नहीं है और राइटिंग भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज कृपया करके थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना कि सर इतने अच्छे तो नहीं है, बट कोशिश कर रहे हैं सर भी सीखने की। ठीक है प्यारी मुन्नियो? ठीक है या नहीं? अच्छा, मुनिया बड़ी एक्टिव होके बैठी हुई हैं। चलो देखते हैं समानताएं। हमारे पास 3 शब्द हैं जो बिल्कुल समान हैं, जो बोले भी वही जाते हैं, लिखे भी वही जाते हैं, हिंदी और पंजाबी में। तो दोनों आपस में बहनें हैं। सगी बहनें तो नहीं है, चलो छोटी बड़ी मान लेते हैं, सगी नहीं है। सगी होती तो सारा कुछ ही सेम होता। आओ थोड़ा थोड़ा सेम देख। यहाँ पे मैं अगर लिखूं हिंदी, यहाँ पे लिख दूं पंजाबी, तो हमारे पास समानताएं पता है क्या क्या आएंगी? हमारे पास समानताएं आएंगी ग। पंजाबी का ग जो है वो बिल्कुल हूबहू ऐसे बनता है, बट हिंदी में हम इसको कहते भी ग हैं, पंजाबी में हम इसको कहते हैं गग्गा। अब आप कहोगे ये पंजाबी में अलग क्यों कहते हैं? तो अगर मैं पूछूं ग की साउंड पंजाबी में ग निकाल रहा है, इंग्लिश में कौन निकालेगा? जी। तो क्या इसको भी ग कहेंगे? इसको तो हम क्या कहेंगे? जी। जैसे चौधरी जी, चावला जी, चोपड़ा जी, ऐसे ये भी जी हैं, पार्ले जी, है ना?
इसीलिए हर भाषा में वर्णों के अलग अलग नाम हो सकते हैं बट साउंड सेम होती है। तो देखते हैं मुन्नी जी, आपको समझ आया पहला शब्द कौन सा सेम है जी? समझ आया जी? किस किस मुन्नी को समझ आया जी? अच्छा, बहुत स्मार्ट मुन्नियां हैं जी क्लास में, वाहिगुरु जी। चलो देखते हैं, पहला शब्द है गा। इसको पंजाबी में ऐसे ही लिखते हैं बट प्रोनाउंस होता है गग्गा, साउंड देता है ग की। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है हिंदी का? ट। ट। और पंजाबी में भी बिल्कुल सेम डलेगा। हम थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? टैंका। देखो टैंका, पंजाबी में इसको कहते हैं टैंका। एक और वर्ड है थ, ये पंजाबी में भी सेम है और हिंदी में भी सेम है, इसको हम कहते हैं ठट्ठा। ठट्ठा। अब देखो हमने 3 शब्द पंजाबी के सीख भी लिए क्लास शुरू होते ही। बोर्ड क्लियर है? हाँ जी। ग गग्गा, ट टैंका, ठ ठट्ठा। साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपने, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर तो मुन्नी जी हिंदुस्तान में ही रह जाएंगी, मुन्नी जी को अपने घर भी जाना है। तो नोट्स बन रहे हैं साथ साथ मुन्नी जी? बन रहे हैं, शाबाश। एक्टिव मुन्नी होके बैठना है। हम बोर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे, हम एक फन वे में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है मुन्नी जी? वेरी गुड, मुन्नी बहुत एक्टिव है। मुन्नी ब्रेकफास्ट करके बैठी है। चलो ये नोट कर लिया मुन्नी जी ने, आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस नो तो कर दो मुन्नी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी पंजाबी की समानताओं में हमारे पास शब्द। अब पंजाबी की कुछ और हिंदी की कुछ मात्राएं देख लेते हैं जो बिल्कुल समान है, ठीक है? सबसे पहले आती है छोटी ई, जो पंजाबी और हिंदी में बिल्कुल सेम डलती है। उसके बाद आती है बड़ी ई, जो पंजाबी और हिंदी में बिल्कुल सेम डलती है। उसके बाद हमारे पास कौन सी आएगी? ए की मात्रा, जो हिंदी में कुछ ऐसे डलती है, पंजाबी में आती आती ना थोड़ी थक जाती है बेचारी, तो इसका ये जो गोला है ये गर्मी से सूख जाता है, तो ये हट जाता है, बाकी सेम डलती है। लाइन शायद टेढ़ी जा रही है मुझे लग रहा है। और उसके बाद आती है बड़ी ए की मात्रा, इसमें भी ऐसे डलती है, बस इसके गोले यहाँ पे सर्कल्स इसके हट जाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम डलेगी, ठीक है जी? समझ आ रही है? आवाज क्लियर है? ओके। देन कम्स आ का डंडा, आ की मात्रा। ये पंजाबी में आती आती, क्योंकि मैंने कहा थक चुकी है बेचारी, यहाँ पे तो इसके गोले सूख गए और यहाँ पे इसकी लेंथ ही कम होगी, छोटी होगी बेचारी, छोटी सी रह गई, ठीक है? थक चुकी है ना बेचारी, अब कितना काम करवाओगे छोटी सी बच्ची से, है ना? तो अब ये पंजाबी में आ की मात्रा थोड़ी छोटी हो गई है। अब हम इनके नाम देख लेते हैं फटाफट। नाम देखें, पंजाबी में छोटी ई की मात्रा को कहते हैं सिहारी। सिहारी, ये नाम भी आपने याद कर लेने हैं। बड़ी ई की मात्रा को कहते हैं बिहारी। बिहारी। ए की मात्रा को कहते हैं ला। ला। ए की मात्रा को कहते हैं दुलाइया या दुलावा। दुलाइया। और छोटा आ, मतलब छोटा बड़ा आ नहीं, जो आ की सिर्फ हाइट छोटी है, काम पूरा करता है वो, इसको कहते हैं कन्ना। कन्ना। चलो नोट कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और मैं देखूं कौन कौन सी मुन्नी नोट कर रही है। मैं देख रहा हूं सबको अपने दूसरे डिवाइस से कि कौन कौन सी मुन्नी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है क्लास में। 400 से 450 लोग हैं हमारे साथ अभी, और फेसबुक पे भी कितने सारे हैं। वाह, वाहिगुरु जी की कितनी कृपा है। किस किस ने नोट कर लिया? जल्दी मुन्नी बन के बताओ किस किस ने नोट कर लिया। ओहो, मुन्नियां इतनी एक्टिव है कि बोले सही कि मुन्नी मैं फटाफट करके देखो।
वेरी नाइस। इरेज कर दें मुन्नी जी, इरेज कर दें? ओके ठीक है मुन्नी जी, अभी हम इरेज कर देते हैं। अच्छा सुनो, अगर आपसे कोई स्लो राइटर है, जैसे जब मैं भी स्कूल में था ना, वैसे मैं अभी भी स्कूल में हूँ, आप कहोगे इतना बड़ा आदमी है स्कूल में ही पढ़े जा रहा है। पहले मैं स्कूल में पढ़ता था, अब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो आई एम अ टीचर ओवर देयर। आई एम अ साइंस टीचर एंड आई एम अ मॉरल साइंस टीचर, दोनों काम है मेरे पास। ठीक है, पर यहाँ पे वाहिगुरु जी ने सेवा लगाई, पंजाबी सिखाओ अब आप। मैंने कहा ठीक है वाहिगुरु जी, जैसे आप कहते हो। तो अब हम स्कूल में ही जाए जा रहे हैं। जब मैं स्कूल में जाता था, मैं भी बहुत स्लो राइटर था। डंडे का डर होता था मैम का हमेशा, ये उड़ता हुआ आएगा बाहर और मेरा सिर तोड़ेगा। पर फिर मैं ना वैसा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बना, हमें किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो मैंने ये सीखा कि आपके होमवर्क में हमने पहले ही सारा कुछ मेंटेन करके दिया है। अगर आप कुछ मिस कर जाते हो यहाँ पे, तो डोंट वरी एट ऑल, आपको सारा कुछ होमवर्क में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और मिल जाएगा। और एक और चीज, कैंप की सारी वीडियोस आपके इस चैनल पे अपलोड हो ही जाएंगी, तो ये वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है, आगे भी तो कुछ करना है ना, बहुत लंबा सफर है ये तो। समानताओं में एक मात्रा हमारे पास और रहती है, उसको हम कहते हैं बिंदी। बिंदी हिंदी और पंजाबी दोनों में सेम होती है। ठीक है, जैसे बिंदी हिंदी में डलती है, कैसे डलती है? किसी रेखा के ऊपर, ऐसे ही इसमें भी किसी रेखा के ऊपर बिंदी डलती है, इसको हम बिंदी ही कहते हैं, बिंदी। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, ताकि हम आगे बढ़े। अब हम देखते हैं हमने कितना सब कुछ सीख लिया। हमने सीखे 3 शब्द और 6 मात्राएं, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ए बड़ी ए, आ की मात्रा और बिंदी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम सीखेंगे कुछ शब्द जो समान नहीं है, कुछ ऐसे शब्द सीखेंगे जो समान नहीं है। हिंदी, अगर हिंदी पढ़ते रहेंगे तो पंजाबी कब सीखेंगे? तो आइए अब पंजाबी के 3 शब्द सीखेंगे, सिर्फ 3 शब्द, ताकि आपको बर्डन ही ना लगे बिल्कुल। शारुल बहन जी, अगर आप क्लास में हो तो सबको एंटर करे जाओ, जो साथ साथ आ रहे हैं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनको भी बोर्ड क्लियर होगा, वो भी साथ साथ नोट्स बनाते रहें। बना रहे हो फेसबुक वालों नोट्स? मैं कमेंट्स पढ़ूंगा अभी सबके, कि कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं बनाने या नहीं आ रहे। फिर देखेंगे हम हिंदी और यहाँ पे लिखेंगे पंजाबी। अब हम कुछ शब्द सीखेंगे जो हिंदी और पंजाबी में सेम नहीं है। अच्छा, पंजाबी वर्णमाला का सबसे पहला शब्द होता है ऊड़ा। क्या वर्ड होता है? ऊड़ा। ऊड़ा। अब आप कहोगे ये कैसा शब्द बता दिया इसने, इसकी तो साउंड ही समझ नहीं आ रही, ऊड़ा। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, घबराने की क्या जरूरत है। हिंदी में जिसको हम कहते हैं ऊ, जो ऊ की साउंड निकालता है, वो पंजाबी में बन जाता है ऊड़ा, और ऐसे ही बनता है। आप कहोगे ये तो समान हो गया, पर थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, सबने, हर रिलीजन का ना एक सिंबल होता है। जैसे सिख रिलीजन के सिंबल में या तो खंडा आपने बना देखा होगा, जो कुछ ऐसा बनता है, मुझे बनाना भी नहीं आ रहा है, देख, कोशिश तो कर ही लेंगे। खंडा कुछ ऐसा आपने देखा होगा बना हुआ, देखा है ना ऐसा खंडा बना हुआ, ये सिख रिलीजियस सिंबल होता है। या फिर आपने एक और चीज देखी होगी कि सिखों के साथ एक और चीज जोड़ दी जाती है, वो ये है, इसको क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, इसको हम कहते हैं इक ओंकार। क्या कहते हैं? इक ओंकार। तो ऊड़ा जो है वो इक ओंकार जैसा ही दिखता है बिल्कुल, बस यहाँ से एक हटा देंगे, ओंकार की ये लाइन हटा देंगे, और इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे तो ऊड़ा बन जाएगा। आप कहेंगे इतना बड़ा प्रोसेस, चलो इजी से समझते हैं, थोड़ा इजीली समझते हैं इसको, घबराना नहीं है किसी को।
तो हमने इसको ऊ से बनाना था। ऊ से ही हम इसको कैसे बनाएंगे देखें, ऐसे लाएंगे इसको यहां से, पहले इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। देखो दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लाए, थोड़ा सा 3 एक्सटेंड करके बनाया और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बनाया। यहाँ पे इतना जब बन गया तो इसको यहाँ से ऐसे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ दिया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे और ऐसे कवर कर देंगे, ऐसे कवर कर देंगे, तो ये बन गया ऊड़ा। सबको समझ आया कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू मेक ऊड़ा? सब मुन्नियां इतना लिखने में बिजी हो गई हैं, किसी ने बताया ही नहीं। वेरी आप बता रहे हैं सब, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्टिव मुन्नी। सबने हेड कवर करके बैठना है, इंस्ट्रक्शंस में भी तो बताया था, यू हैव टू कवर योर हेड्स। हेड कवर्स कहाँ हैं सबके? अब आप कहोगे लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसमें हेड कवर की क्या जरूरत है? इस लैंग्वेज की लिपि का नाम, डायलेक्ट का नाम है गुरमुखी। क्या नाम है? गुरमुखी। गुरमुखी का मतलब होता है गुरु के मुंह से निकली हुई भाषा। अब गुरु जी का कितना पवित्र मुखड़ा होगा, जिन्होंने कितनी पवित्र भाषा बनाई है। जैसे हम संस्कृत को क्या कहते हैं? देव भाषा। ऐसे इस लिपि का नाम है गुरमुखी। तो हमें इसकी रिस्पेक्ट में सिर ढक के बैठना है, ठीक है। और सिर वैसे भी ढकना होता है, उसके क्या क्या रीजंस हैं वो हम आगे भी बताते रहेंगे कभी कभी क्लास में, वाहिगुरु कृपा करें। चलो देखते हैं ऊड़ा कैसे लिखा है हमने। ऊड़ा हमने लिखा है ऐसे। सबने लिख लिया ऐसे ऊड़ा? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? सेल वीक हो गए हैं क्या? सेल यहाँ पे डलवाएं, न्यू भिजवा दूं सबके घर? बहुत अच्छी बैटरीज हैं हमारे पास, हम खुद बनाते हैं बैटरीज। उन बैटरीज का नाम है मुन्नी बैटरीज। यहाँ पे डलती हैं और फिर बहुत अच्छी गर्दन हिलती है। किस किस को चाहिए मुन्नी बैटरी? अगर नहीं चाहिए तो फिर अपने सेल ताजा रखिए, तेज रखिए, एक्टिव रखिए, जोशीले रखिए। अच्छा, इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम होता है ऊड़ा। ऊड़ा। ऊड़ा किसकी साउंड देता है? ऊ की। किसकी साउंड देता है? ऊ की। ऊड़ा, ऊ। अब हम अगला वर्ड सीखेंगे, अ। हिंदी में जो अ होता है वो पंजाबी में क्या बन जाएगा? ये पंजाबी में बन जाता है एड़ा। क्या बन जाता है? एड़ा। सारे बोल भी रहे हैं, हालांकि म्यूट हैं, बट मैं लिपसिंग से पहचान सकता हूँ। सबको मेरी आवाज क्लियर है? सबको मेरी आवाज क्लियर है? बैटरीज ठीक है सबकी? ठीक है, मैं देख रहा हूँ अपनी बैटरी चेक कर लो मैं। हाँ ठीक है, तेज है अभी, चल रही है, चल रही है मेरी तो बैटरी। देखो किस किस की चल रही है, किस किस की चल रही है, देखो। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो, अ से बनता है एड़ा। ये अ की साउंड निकालता है। कैसे बनाएंगे? अगर मैं ऐसे आपको, बनता ऐसे है, अगर मैं एकदम ऐसे बना दूंगा आप डर जाओगे, ये क्या बना दिया भाई, इतना मुश्किल, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। तो हम मुश्किल रखेंगे ही नहीं किसी चीज को, क्योंकि हमने सीखना ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में है। तो देखते हैं, स्मॉल लाइन, स्लीपिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, इंग्लिश का आर बनाएंगे। अभी आप कहोगे हिंदी में सिखा रहा था, अब इंग्लिश भी शुरू हो गई। हम हर उस चीज से सीखना शुरू कर देते हैं जहां से हमें कुछ इजी मिले। कहीं से भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं हम, किसी भाषा से, किसी जानवर से, किसी इंसान से, किसी संस्था से, किसी धर्म से, किसी मजहब से। जहां से भी सीखने को मिले ना, ये मत सोचा करो कि हम पीछे हट जाएं। जैसे अगर हम कहीं रास्ता भटक जाएं, तो क्या रास्ता जब पूछ रहे होते हैं, हम कहते हैं भैया प्लीज बता दो हमें, यहाँ इसके घर जाना है, डी ब्लॉक में जाना है हमें भैया, तो आप बता दोगे? वो भैया जब बता रहे थे तो क्या मैं कभी पूछता हूँ भैया पहले बताओ आप हिंदू हो या मुस्लिम? मैं तभी पूछूंगा अगर आप हिंदू होगे, मैं तभी पूछूंगा अगर आप मुस्लिम होगे। ऐसे कहते हैं हम कभी? क्योंकि हमें पता है घूसे थोड़ी खाने हमने उससे। वो कहेगा एक तो मैं मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तेरे को ये बताऊं कि मैं हिंदू मुस्लिम। तो अगर हम रास्ता पूछते हुए भेदभाव नहीं करते, तो धर्म के नाम पे हम इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? कि रैली में कौन बैठा है भाई, हिंदू है या मुस्लिम? टेरर अटैक्स में कौन शामिल है, हिंदू है या मुस्लिम? इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या है? जो भी टेररिस्ट होते हैं ना, उनका धर्म ही नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म सिखाता है? आपने पढ़ा है किसी धर्म के उठाओ गोलियां और मारो लोगों को? पढ़ा है कभी? अच्छा, और जो भी धार्मिक लोग होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी पे जब जाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी को मिलने किसी गुरुद्वारे और माथा टेकेंगे ना, तब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो सिखों के प्रेजेंट गुरु हैं,
उसमें 36 लोगों ने मिलके बनाए हैं। 36 लोगों ने मिलके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है अपनी अपनी वाणियां, जिसमें से सिर्फ 6 गुरु हैं, 6 सिख गुरु हैं। बाकी 30 कौन है? आप कहोगे सर सिर्फ 6 ही सिख गुरु हैं तो 30 कौन है? तो 30 में 15 जो है वो भक्त हैं। 15 हमारे पास भक्त आते हैं, 11 भट्ट हैं। भट्ट होते हैं एक कास्ट है, पूरा क्लैन जिसको हम कहते हैं, ग्रुप, भट्ट कास्ट थी उनकी। वो उस जाति के 11 लोग थे, 15 भक्त थे और 4 जो थे वो सिख थे। 4 सिख थे, 6 गुरु थे, 15 भक्त और 11 भट्ट। अब आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब गुरु नानक देव जी ने धर्म की स्थापना करी तब उन्होंने जाति, वर्ग, मजहब, रूप, रंग, जात पात से बड़ी ऊपर उठ गए। तो इन 15 भक्तों में 11 भक्त हिंदू हैं, 11 भक्त हिंदू हैं, 4 मुस्लिम हैं, 4 मुस्लिम भक्त हैं। अब आप सोच के हैरान होंगे कि सिख जब माथा टेक रहा है तो क्या वो हिंदुओं को भी माथा टेक रहा है, मुस्लिम को भी माथा टेक रहा है? बिल्कुल। पर जब हम माथा टेकने जा रहे हैं तब उस धर्म में जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इक्वालिटी ऐसी आ चुकी है कि ना वहां पे कोई हिंदू है और ना वहां पे कोई मुस्लिम है। सब एक ही स्टैंडर्ड में आके सिर्फ एक गुसाई अल्लाह मेरा, एक अल्लाह, एक वाहिगुरु, एक राम की बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान तो एक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर रास्तों की अगर यहाँ पे जंग नहीं है तो धर्म के नाम पे हम जंग क्यों कर रहे हैं? होनी चाहिए धर्म के नाम पे कोई लड़ाई या कोई फसाद, ऐसा होना चाहिए धर्म के नाम पे कुछ। देखो मुझे बीच में कॉल्स आ रहे हैं, लोगों को पता भी है कि सर क्लास ले रहे हैं फिर भी कॉल्स आए जा रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एड़ा, एड़ा देखते हैं कैसे बनेगा। स्लीपिंग लाइन, उसके बाद इंग्लिश का आर बनाएंगे, इंग्लिश का आर, स्मॉल आर। मतलब आप कैसे समझाएंगे लोगों को? मैं 3 बार कॉल काट चुका हूं बट वो करे ही जा रहे हैं, कॉल करे ही जा रहे हैं। देखो इतना प्यार करने वाले लोग हैं मुझे कि कॉल करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। चलो एड़ा बनाएंगे सबसे पहले स्लीपिंग लाइन के साथ इंग्लिश का स्मॉल आर, एक और आर बनाएंगे बट यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश का स्मॉल आर बनाए, फिर एक और बनाए, फिर यहाँ पे एक और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, देन इट्स कंप्लीट। एड़ा, एड़ा। फॉर्मेशन किस किस को समझ आई? दीपाली आहूजा के नाम से एक बच्चा बैठा है, उसका तो हेड अनकवर्ड है, और भी मैं बच्चे देख रहा हूँ हेड अनकवर्ड क्यों है? सब पे नजर है मेरी, मेरी कौन कौन सी मुन्नी काम कर रही है। हेड कवर करना है सबने या नहीं करना है? करना है, सबकी बैटरीज ठीक हैं, वेरी नाइस। चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एड़ा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एड़ा, एड़ा, एड़ा लिख लिया। ये अ की साउंड देता है। एक और शब्द कर लेते हैं, इसको कहते हैं ई, और पंजाबी में ऐसे ही बना लेंगे हम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम, क्योंकि आप देखेंगे कि हम ऐसे ही सीख लेते हैं सेम बना के, तो दोबारा बनाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे हिंदी की सेम कितना मुश्किल है, बार बार वो कॉल करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अब देखो हमने ई बना ली वैसे ही सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से इरेज कर देंगे थोड़ी सी, ताकि पंजाबी की ईड़ी बने, इतनी इरेज कर देंगे। अब आप कहोगे आपने तो ट बना दिया, बिल्कुल हमने ट की शेप में इसको बना दिया, और यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन ऐड कर दी, स्लांटिंग लाइन। ठीक है, स्लांटिंग लाइन ऐड कर दी तो ये बन गई ईडी, इसको कहते हैं ईडी। ईडी किसकी साउंड देती है? ई की साउंड देती है। थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं, ईडी, ईडी चीड़ी जितनी छोटी बन गई, ईडी। अच्छा ये तीनों शब्द किस किसने नोट कर लिए? जल्दी जल्दी से बता दो मेरे को, जल्दी से। समझ आ रही है सबको? कोई बोर हो रहा है साथ साथ? बोर हो रहे हैं क्या कोई? मैं देखूं। अच्छा नहीं, शुक्र है वाहिगुरु जी का कोई बोर नहीं हो रहा है। चलो अब इसको इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे को बताएंगे कि आपने कितने शब्द सीख लिए, जल्दी
फिंगर से काउंट करके, सिर्फ शब्द, मात्राएं नहीं। जब तक मैं ये कर रहा हूं तब तक आप मुझे बताएं कि कितने शब्द सीखे। अच्छा, कितने सीखे हैं? ओ वेरी गुड, बड़े स्मार्ट हैं यहाँ पे तो सब लोग। मुझे लगा सब कहेंगे 3 ही तो सिखाए हैं। 6 अल्फाबेट, हमने 6 शब्द सीख लिए हैं, 6 शब्द। ठीक है, आइए देखें कौन कौन से 6 शब्द सीखे हैं। सबसे पहले हम ऊपर शब्द लिख लेंगे और नीचे मात्राएं जो आज सीखी। टुडेज लेसन इज, हमने सीखा ग, ट, ठ, सबसे पहले ये 3। उसके बाद पंजाबी के 3 शब्द, साथ साथ बोलेंगे उन शब्दों का नाम। गग्गा, टैंका, ठट्ठा, ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी। यही सीखे हैं या कोई और भी सीखा है? यही है ना? ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन सी मात्राएं हैं। मात्राएं हमने सीखी हैं। छोटी ई सिहारी, बड़ी ई बिहारी, छोटी ए ला, बड़ी ए दुलाइया, आ का डंडा कन्ना, बिंदी जिसको हम बिंदी कहते हैं। ठीक है, बिंदी को हम बिंदी कहते हैं। समझ आ गई? यही शब्द सीखे हैं, वेरी गुड। चारुल पेन जी, आप क्लास में हो? एक बार यस नो कर दो मेरे को, माइक ऑन करके प्लीज। हाँ जी। मैं स्पॉटलाइट में हूँ, फेसबुक पे एक बार चेक कर लीजिए। मेरे को बार बार कॉल आ रहा है व्हाट्सएप पे, तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए मैनेज करना कि मैं स्पॉटलाइट पे हूँ या नहीं। स्क्रीन बार बार टच करनी पड़ रही है। एक बार फेसबुक पे चेक करके बता दीजिएगा, और ग्रुप्स में एक मैसेज डाल दीजिए प्लीज कि पहली चीज आपने मैसेज डालनी है, जूम क्लास फुल हो चुकी है, आप फेसबुक पे ज्वाइन करें। और दूसरा, फेसबुक का डायरेक्ट लिंक भेजिए। ठीक है, ये हमने अक्षर सीख लिए हैं पंजाबी के, अब हम इससे शब्द सीखेंगे। ये अक्षर हैं। मेरे को अभी किसी ने फेसबुक पे मैसेज डाल के करेक्ट कर दिया कि गगनदीप सिंह सही चीजें बताओ, गलत मत सिखाओ। तो ये अक्षर हैं, अक्षर जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अक्षर। तो ये पंजाबी के अक्षर सीख लिए, अब हम पंजाबी के शब्द बनाने सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर सिमरन कौर सेठी जी, आपने मेरे को करेक्ट किया है। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाम ही पड़ गया हमारा सिख। सीखते ही रहना है, मरते दम तक सीखते रहना है। और जब कोई हमारी गलती निकाले तो नाराज होके नहीं बैठ जाना है, हमेशा खुश होना है। थैंक गॉड, मेरी एक और कमी किसी ने निकाल के मुझे सुधार दिया। ठीक है, अब चावल हैं, जब मम्मा चावल छानती हैं, उसमें से गीटे पत्थर कंकड़ निकाल देते थे, तो चावल मुंह फुला के बैठ जाता है। मेरे गीटे थे, मेरे पत्थर थे, सारे निकाल दिए अंदर से, मुझे वापस चाहिए। चावल तो खुश होगा कि खाने वाले को आसानी होगी, उसके दांत के नीचे किच किच नहीं होगा। तो ऐसे ही जो हमारे अंदर कंकड़ पत्थर कमियों के हैं, वो कोई निकाले तो खुश होना चाहिए और उनको थैंक यू भी कहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये सब हमने पंजाबी के अक्षर सीखे हैं, शब्द नहीं सीखे, अक्षर हैं और ये मात्राएं हैं। आइए अब पंजाबी के शब्द बना लेते हैं। बनाए? पहले मैं देखूंगा, एक दो तो मैं बना दूंगा, फिर मैं देखूंगा आप कौन कौन से बना पा रहे हैं, क्योंकि बड़े चालाक भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी लेसन देखा हुआ है, तो उनको तो पता होगा कौन कौन से बनाएगा, है ना? बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नया बनाने की। तो आइए देखते हैं सबसे पहला शब्द। सबसे पहला शब्द, थैंक यू चारुल बहन जी। सबसे पहला शब्द जो था वो हमने सीखा है, मैं पंजाबी में लिखूंगा, आपको बताना होगा। बताओगे? मैं लिखूंगा पंजाबी में, आपको बताना होगा कि ये पंजाबी में पढ़ेंगे कैसे। देखो, फर्स्ट डे है, इट्स द वेरी फर्स्ट डे एंड वी हैव स्टार्टेड मेकिंग द वर्ड्स फ्रॉम द अल्फाबेट। अक्षरों से शब्द बनाना पहले दिन में ही सीख रहे हैं। वाहिगुरु जी की कितनी कृपा है। चलो, पहला शब्द हमने ये बनाया था, अच्छा आप मुझे सिर्फ लिपसिंग करके बताओगे कि क्या लिखा है ये। अच्छा, कौन कौन पढ़ पा रहे हैं? मुन्नी बन के बता दो, जल्दी बता दो। वेरी गुड, पढ़ पा रहे हैं। चलो साथ साथ हिंदी में भी लिख देते हैं। ये हिंदी का क्या था? अ। ये छोटी आ की मात्रा, ये इसमें छोटी आ सिर्फ हाइट छोटी है, काम पूरा करती है वो। और ये है ट, और ये क्या बन गया? ट
सेम था टैंक का, अ एड़ा सेम था, तो हमने क्या बनाया, आटा। आटा क्या बना, आटा। अब दोबारा और देख लेते हैं कुछ शब्द। ये क्या बना, हिंदी में पंजाबी का टैंका हिंदी में ट, पंजाबी का कन्ना हिंदी में आ की मात्रा, पंजाबी का टैंका हिंदी का ट, पंजाबी का कन्ना हिंदी में आ की मात्रा। क्या बना ये, टाटा। टाटा, टाटा कर दे, अभी नहीं टाटा करेंगे, थोड़ा सा और सीख लें उसके बाद टाटा करेंगे, ठीक है। ये क्या बना, टाटा। ठीक है, आपने ना ये होमवर्क जरूर देखना है, रोज का रोज होमवर्क देखना है, और जो कैंप की वीडियो जाएगी वो भी देखनी है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको सारा लेसन समझ आ जाए, कि 1 घंटे में आपको ये ना हो कि ये तो भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। ठीक है, तो हमें चैप्टर अच्छी तरह समझ आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि होमवर्क करना। कौन कौन होमवर्क करेगा रोज का रोज, जरा बता दो मुझे। सेल वीक हो गए हैं, सबके हाथ खड़े हो गए हैं, सिर हिल ही नहीं रहा है। सेल वीक हो गए हैं। कल से हम 2 न्यू बैटरीज यहाँ पे डलवाएंगे और फिर पढ़ेंगे। किस किस के सेल वीक लग रहे हैं मुझे, होमवर्क कौन कौन करेगा। वेरी गुड, सेल बिल्कुल ठीक है, थोड़े से लेजी हो जाते हैं। चलो आइए दोबारा देखते हैं, और कोई नए शब्द ट के आसपास के ही बनाएंगे। देखो ये क्या लिखा है मैंने, हिंदी में देख लेते हैं साथ साथ। एड़ा ठ की जगह ठ, क्या बना, आठ। क्या बना, आठ। अब आप कहोगे आठ क्या होता है, जिसको हम हिंदी में आठ कहते हैं, आठ यानी 8, उसको पंजाबी में आठ कहते हैं। ओ, इसको हम पंजाबी में भी तो लिख सकते हैं, हिंदी वाले आठ को कैसे लिखेंगे, आठ ऐसे लिखेंगे, राइट। अच्छा, एक दो और शब्द। अभी हमने चावलों से ये चीज निकाली थी, क्या निकाली थी, पंजाबी और ओ, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, हिंदी और पंजाबी में सेम ही लिखा जाएगा। ग को बड़ी की मात्रा, ट को बड़ी की मात्रा, गग्गे नु बिहारी, टैंके नु बिहारी। हम ऐसे ही बोलना भी सीखेंगे, गग्गा और ई की मात्रा को कहते हैं बड़ी को बिहारी, गग्गे नु बिहारी, टैंके नु बिहारी। तो की बन गया, गीटी। अब थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोलनी भी सीखेंगे, जैसे हम कहते हैं ना क्या बन गया, हम कहते हैं की बन गया, की बन गया, गीटी। की बन गया, सब बोलेंगे की बन गया, गीटी। अभी हमने गीटी निकाली थी ना उससे, चावलों से। अच्छा, ये क्या बना, आप मेरे को बताओ। हिंदी विच में को पंजाबी में कहते हैं विच, जैसे हिंदी में क्या बना, पंजाबी विच की बनया। तो अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा बीच में क्या बना, बट जब मैं कहूंगा ना की बनया, तो फिर तुसी दसना है, आपने यानी तुसी बताना है, मतलब दसना है। तुसी दसना है कि की बनया, ए की बनया, गठ। की बनया, गठ। अब मैं बोर्ड इरेज कर रहा हूं, सबने नोट कर लिया है, जल्दी। टिक टिक 1 से टिक टिक 3 तक का टाइम मिलेगा आपको सिर्फ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। चलो आओ इरेज करें। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं हम, जो हम बना पा रहे हैं। आप अपने से भी कुछ नए शब्द बना लेंगे। अच्छा, ये जो सारे शब्द बना रहे हैं पंजाबी के शब्द नहीं है, पंजाबी लिपि में लिखे हो सकते हैं। जैसे हमने क्या बनाया था, टाटा। टाटा पंजाबी का शब्द तो नहीं है, बट हमने उसको लिपि यानी जिसमें लिखा हुआ है वो पंजाबी भाषा थी, गुरमुखी लिपि में लिखा था। ठीक है, जैसे अभी हम मैंने कौन सा वर्ड लिखा था, गठ। गठ लिखा था ना, हाँ। इसको पंजाबी में तो गठ कह दिया, गठ मतलब नोट, किसी चीज को गठ। गंड भी कहते हैं पंजाबी में उसको, गठ भी कहते हैं, पर इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गांठ। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ, नॉट।
तो अब इसको, जिसको हिंदी में गांठ कहा उसको पंजाबी में हमने गठ कह लिया, जिसको हिंदी में हमने आठ कहा उसको पंजाबी में हमने अठ कह लिया, जहां पे आ की मात्रा नहीं प्रयोग हुई। ऐसे ही जिसको हिंदी में हमने आग कहा, आग, उसको पंजाबी में हमने कह दिया अग। किन्नी अग लगी है इन्हों, अग, ठीक है, इसको पंजाबी में हमने कह दिया अग। आप पढ़ पा रहे हैं? मुश्किल तो नहीं लग रहा? किसी मुन्नी को मुश्किल लग रहा है? सारी मुन्नियां नहीं बोल रही, देख रहा हूं मैं, सारी चुप करके बैठी हुई हैं कुछ ना कुछ तो। अच्छा चलो और आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं हमने कौन कौन से और शब्द लिखे हैं। हमने लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है? अ, एड़ा अ, कन्ना आ की मात्रा, गग्गा ग, ला ए की मात्रा। आगे 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 पढ़ो जल्दी, आगे आगे। इसको हम पंजाबी में कहते हैं अग्गे, बट पंजाबी में अग्गे ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे अद्धक भी डलती है, तो इसलिए अभी शब्द नहीं करा रहा। अद्धक का मतलब होता है आधा शब्द, जैसे फोर्स लगता है जब हम बोल रहे हैं अग्गे, पीछे, दिल्ली, बिल्ली, तो यहाँ पे आधे शब्द का प्रयोग होगा हिंदी में। पंजाबी में आधे शब्द जगह एक अद्धक होती है, एक मात्रा, वो अगले लेसन में देखेंगे कैसे करना है। तो अभी हम और शब्द देख लेते हैं। अभी हमने टाटा बनाया था, तो टाटा से एक और शब्द बन रहा है, देखो ये क्या है, जो ट्रेन में आता है टिकट चेक करने वाला। इसको पंजाबी में और हिंदी में सेम लिखेंगे, टैंके नु बिहारी, टैंके नु बिहारी। ए शब्द की बनया, ए शब्द की बनया, टीटी, की बनया, टीटी। और अगे देखते हैं और असी की सीख सकते हैं। और हमने कौन कौन से लिखे हैं? एक मैंने लिखवाया था लेसन में, ये देखो ये क्या लिखा है, टैंके नु कन्ना बिंदी, गग्गे नु कन्ना, ट को आ की मात्रा बिंदी, ग को आ की मात्रा, क्या बना? टांगा, टांगा, ठीक है। तुसी नोट कर लो जल्दी, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। ओके, सो वी आर डन विद टुडेज लेसन। और भी बड़े सारे शब्द ने, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको होमवर्क के पेज पे सिखाए गए थे। मुझे उम्मीद है आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। ये शब्द तो आपने लिख लिए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आपने लिख लिए। बट और शब्द जो हमने वाहिगुरु कृपा करे यूट्यूब के लेसन में सीखे हैं, वो भी आपने कॉपी में मेंटेन करते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके मन में जो नए नए शब्द आ रहे हैं, जो इन अक्षरों से हमने सीखे हैं, इन्हां अखरां तो असी सीखे हैं, अक्षर को पंजाबी में कहते हैं अखर, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ अक्षरां तो सीखे हैं, इन्हां अखरां तो सीखे हैं, वो भी आप नए नए बना सकते हो। आपके जहन में कितने सारे और शब्द आ रहे होंगे, तो आप वो भी अपनी कॉपी को मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है। और कॉपी मेंटेन करके खूब सारी अच्छी हम नोटबुक बना लेंगे, ताकि जब भी हमें पंजाबी रिवाइज करनी हो तो हमें कोई परेशानी आए ही ना, है ना। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि होमवर्क रोज करेगा या करेगी? अच्छा, हेड कवर करके कौन कौन बैठेगा या बैठेगी? अच्छा, वेरी गुड। चैनल में सब्सक्राइब कौन कौन करेगा या करेगी? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆਏਗਾ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ पेज ਤੇ ਜਾ ਕੇ कौन कौन देखेगा या देखेगी? कौन कौन क्लास से छुट्टियां मारेगा या मारेगी? देखो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ना, सर बड़े चालाक हैं, सर को बड़ा पता कि कैसे सिर को कैसे घुमाना। तो छुट्टियां नहीं मारनी है, ठीक है। तो कौन कौन छुट्टियां मारेगा या मारेगी? कोई भी नहीं छुट्टी मारेगा, क्योंकि उसी पंजाबी लैंग्वेज सीखनी है, अच्छी तरह सीखनी है। तो जो अच्छी तरह सीखनी है, जैसे छुट्टी मारेंगे तो फिर कि मैं सीख पाएंगे। सो आज एक बार फिर बेनती कर रहे हैं, हाँ देखो पंजाबी बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, मैं बीच बीच में पंजाबी बोलता हूँ, थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। अच्छा, कुछ इस तरह ही कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही हिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कौन पूरा सिर हिलाए, है ना। मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने स्माइल भी कर रहे हैं कि पकड़े गए, है ना।
मैं सारे नु देख पा रहा कुछ इस तरह इस तरह नहीं कम चलेगा। बैटरियां ते नवियां पवानियां पैणगियां भाई, ठीक है। ते कौन कौन होमवर्क करेगा? ठीक है, सारे होमवर्क करेंगे। आज तुसी जाके होमवर्क जेड़ा सर हुने ग्रुप विच भेजणगे, जो होमवर्क अभी सर आपके वीर जी ग्रुप में भेजेंगे, आपने वो होमवर्क करना है सबने। फेसबुक का पेज लाइक करना नहीं भूलना किसी ने, दविंदर कौर फाउंडेशन, तभी आपको लेसन्स मिल पाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने कैंप का ये जो रोज का लेसन डलेगा, अगर कुछ भी मिस हो गया या आप कुछ भी बात भूल गए हो, स्किप कर गए हो, तो कैंप का लेसन प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे समर कैंप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे, तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आज फर्स्ट लेसन था, बट फिर भी मैं आपको कहूंगा जितने भी और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नियर एंड डियर वंस हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आप सबको दोबारा बताएं कि पंजाबी सीख रहे हैं। ये आप टोटली अपना रिव्यू दे सकते हैं, कैसी लगी आपको पहली क्लास, या आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताएंगे। अगर बोरिंग लगी तो मत बताना, ऐसी किसी का टाइम खराब। बट अगर ठीक लगी थोड़ी सी भी और कुछ सीख पाए, तो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताओ कि अरे भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, पंजाबी सीख रहे हैं हम मुन्नी बन के, है ना। और फिर हम उनको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, एक न्यू ग्रुप बनाया है, उसमें ग्रुप में ऐड करते जाएंगे, और वो सब हमें फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं, जैसे अभी भी हमारे साथ कितने सारे लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिसने और पंजाबी सीखनी है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और हम आपको न्यू ग्रुप में ऐड कर देंगे। फाइन, समझ आई सबको बात? ओके, गॉट इट, गॉट इट, ग्रेट। तो आज हम सब अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, चैनल पे जाके न्यू होमवर्क देखेंगे क्या सर ने भेजा है, चैनल को सब्सक्राइब करके, अच्छा ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर देना, जो भी कोई अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आज का लेसन करें यहीं पे खत्म, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं ना, लेट ज्वाइन किया था, तो इसलिए आज का लेसन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है 6 नए शब्द और 6 नई मात्राओं, 6 नए अक्षर और 6 नई मात्राओं को आप ढंग से याद करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपना लेसन पूरा मेंटेन करेंगे, नोटबुक्स मेंटेन करेंगे, ताकि हम कल खूब जोश से वाहिगुरु जी का आशीर्वाद लेकर आपके बीच फिर आए और एक नया लेसन सीखें, उसमें नए शब्द सीखें। तो ठीक है, अब हम कल मिलेंगे सबसे, ठीक है। आज कर दें हम टाटा, जो हमने टाटा सीखा था, टाटा पता नहीं कहाँ चला गया, टाटा कर दें आज का, ठीक है। तो जब भी हम क्लास में एंटर करेंगे, हम कहेंगे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी क्लास से बाहर जाएंगे तब भी हम यही कहें, क्लास में आएंगे सिमरन करके, क्लास से जाएंगे भी सिमरन करके, मेडिटेशन, ताकि हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा हो और हम अच्छे से सीख सकें। तो आज के लेसन को हम यहीं खत्म करते हैं। वाहिगुरु कृपा करे हम कल खूब जोश शोर से हम दोबारा आए क्लास में और कुछ नया सीखें। जो काम सर ने कहे हैं वो ध्यान से देखने हैं और होमवर्क कंप्लीट करके रखना है, टाइम से क्लास में ज्वाइन करना है। ओके, टू ऑल लवली डियर्स, टू ऑल द फैमिली ऑफ दिस समर कैंप, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सदा खुश रहो, हसदे वसदे रहो, वाहिगुरु ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ हमेशा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਓਮ ਓਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ कि वाहिगुरु सानू बड़ा कुछ दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। ऑल राइट देन, ओ बच्चे क्यों कह रहे हैं, मेरे तो भी काफी सारी बड़ी एज है, ठीक है पार्टिसिपेंट्स, ठीक है लर्नर्स, ठीक है मेरी मुन्निया, ओके बाय, टेक केयर। ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे बोलेंगे, सारे बोलते दिख नहीं रहे, सब बोलेंगे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।